اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب الرائچ آفیشیل اور میں مطلوب الرائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس پروگرام کو، اس چینل کو دیکھنے، لائک کرنے، سبسکرائب کرنے اور دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی محبتوں اور تعاون سے ہی یہ پروگرام آنے ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد صرف آج کے سختی کے دور میں ہمارا پیغام گھر گھر تک پہنچے، تاکہ آپ لوگوں کی اویئرنیس ہی میرا اور آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ہی میرا زندگی کا مقصد ہے۔ تو جناب چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ خبریں بے شمار جیسے کہ روز ہوتی ہیں، اسلام آباد میں دارالحکومت، وفاقی دارالحکومت میں اور صوبائی دارالحکومتوں میں بھی، اور اتنی خبریں ہیں کہ ہر جگہ ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یلہ مچی ہوئی ہے، ایک تھلی مچی ہوئی ہے، کچھ ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ مطلب اقتدار کے ایوانوں میں خاص طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان زلزلوں کے جھٹکے، آفٹر شاکس محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ روز سب سے بڑی خبر جو آج کل پوری دنیا میں یہ وائرل ہو چکی ہے، بنوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ صرف بنوں تک محدود نہیں ہے، یہ واقعہ بنوں کے علاوہ پورے خیبر پختونخوا، فارمر فاٹا اور ان تمام ایریاز کے لیے جو بارڈر سے منسلک ہیں اور جو پاکستان کی حساس ترین سرحد ہے، اس سے وابستہ لوگوں کی داستان ہے۔ اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور پچھلے کم از کم 45 سال تھے، اور وہ لوگ جس بربریت اور جس ڈر، خوف، بم، لاشوں کے چیتھڑے اڑ جانا اور لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں جس طرح ان لوگوں نے پیش کی ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک سچے محب وطن اور سچے پاکستانی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہ کرک کے ہوں، سوات کے ہوں، مردان کے ہوں، بنو کے ہوں، وہ یعنی کسی بھی علاقے کے خیبر پختونخوا سے، وہ وزیرستان کے ہوں، وہ جنوبی وزیرستان کے ہوں، وہ شمالی کے ہوں، وہ مطلب پشاور کے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ سچے نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ سچے پاکستانی ہیں۔ اور ہم سب، آپ سب جو سب یہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے یا سن رہے ہیں، یا جن کے کان بھی باندھے، ان کے لیے بھی عرض ہے کہ ہمیں ان کی وطن پرستی پہ ذرا برابر بھی، ایک رتی بار بھی شک نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ہم ان کی وفاداری کا، ان کی حب الوطنی کا، ان کے مطلب بار بار شکوک و شبہات، کبھی ہم ڈیونڈر کا لائن کو لے آتے ہیں کہ وہ جی ادھر والے جہلم تک نقشہ شو، نقشے کا کیا ہے؟ آج کل نقشہ ایک چھوٹا سا 7 سال کا بچے سے کہ وہ آپ کو بنا کے چلا دیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو انڈیا بھی کہتا ہے پورا پاکستان ہمارا ہے، کہ یہ 47 سے پہلے انڈیا کے حصہ تھا، اس لیے یہ ہمارا ہے۔ یہ تو ادھر ایران تقاضا کرتا ہے ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہے، وہ کہتا ہے پورا بلوچستان ہمارا ہے، کیونکہ آدھا بلوچستان پہلے ہی ہمارے پاس ہے۔ تو پھر تو ہم ان کی باتوں پہ جانے لگے، ان کی باتوں کو مان لینے لگے، یا ان باتوں پہ سرخم تسلیم کرنے لگے، یا ان کی باتوں کو وقت دینے لگے، تو آج ہمارے پاس پاکستان کچھ بھی نہ ہو۔ کیونکہ پنجاب کا تو پہلے یہ حل کر دیا کہ وہ یہاں ساہیوال تک وہ کلیم کرتے ہیں جنوبی پنجاب والے کہ یہ جناب اس کو ہم نے سرائکستان بنانا ہے، خدا نہ خواستہ۔ اور وہ جناب دوسری طرف جنگ والے اور چنوٹ والے اور سرگودا والے وہ علیحدہ پاکستان مانگتے ہیں، وہ پنجاب مانگتے ہیں، اور وہ پوٹھوار والے ابھی کہنا شروع کر دیے کہ نئی بات ہے کہ وہ بھی کہنا شروع ہو گئے جناب یہ پوٹھواری پنجابی نہیں ہے، وہ علیحدہ پنجاب مانگتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے مانگنے، ان کی ڈیمانڈ کرنے سے یہ واقعات ایسے ایکسیپٹ نہیں ہو جاتے، رونما نہیں ہو جاتے۔ یہ
हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम से चलता चला आ रहा है ये वाकयात, और इन पे कुछ ज़्यादा हाँ सीरियस बातों पे ध्यान देना चाहिए, लोगों के मसाइल हल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो हुक्मरान तबका है वो लोगों के मसाइल हल करे, लोगों को मुलाजमतें दे पढ़े लिखे नौजवानों को, और जो अभी पढ़ने लिखने के काबिल हुए हैं उनको ज़राए मुहैया करे, उन्हें तलीमी अदारे मुहैया करे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और अकेडमियाँ, इंस्टीट्यूट मुहैया करे। उनका उसका काम ये है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूरोप में करते हैं। वो अपनी नस्ल को अपना वारिस समझते हैं, और हम अपने बेटे बेटी को अपना वारिस समझते हैं। हम जिस कौम से आज हमारा वास्ता है वो अपनी औलाद को अपना वारिस समझते हैं, वो कौम के बेटे बेटियों को अपना वारिस नहीं समझते। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जो हुकूमतों का फर्ज है, हुकूमतों का फर्ज ये है कि वो लोगों की ज़रूरियात देखें, ज़रूरियात क्या हैं। और अगर हमने लोगों की ज़रूरियात को छोड़कर एक सिर्फ इस नुक्ते पे काम करना शुरू कर दिया कि फलां गद्दार है जी, फलां मुहिब्बे वतन है जी, फलां नेक है, फलां बद है, फलां पाक है, फलां नापाक है, तो यार इस तरह तो हम उस मौलवी की तरह हो जाएंगे जो जन्नत की टिकटें बेचता है, जो जन्नत के स्पेशल वीआईपी वीवीआईपी पास बेचता है। तो आप को ना किसी पास की जरूरत है, जन्नत में जाएंगे आप अपने अमाल के साथ, और मुहिब्बे वतन कहलाएंगे आप अपने किरदार के साथ, कि आपका किरदार, आपका प्रैक्टिकल किरदार अपने वतन के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ किस कदर मुखलसाना है, किसी शक शुबे से बलातर है। और जब आप ऐसे ही उठ के इल्जाम देने शुरू, मेरे सामने, मैं थोड़ा सा इस चीज के लिए थोड़े कम वक्त पे भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने अल्फाज को समेटते हुए मैं आपको ये बताऊं कि आप सबको पता है, मैं बताऊं क्या, सिर्फ रियलाइज करवाना चाहता हूं आपको। तो हमारे मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा गया, सबसे पहला गद्दार करार दिया गया। उससे पहले जनाब मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिया गया, उससे पहले याह्या खान को गद्दार करार दिया गया, और एक गद्दारों की एक फहरिस्त है। फिर उसमें जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उसकी बेटी गद्दार बनी, फिर उसकी वो जनाब अकबर भुगती साहब गद्दार बने, उससे पहले भुट्टो के दौर में ही वली खान साहब गद्दार बने, खान अब्दुल वली खान साहब मरहूम, वो गद्दार बने। फिर अकबर भुगती को शहीद किया गया, वो भी गद्दार था। मेरी एक दफा अकबर भुगती साहब से मुलाकातें हुई, और पहली मुलाकात अफगान कबाब हाउस न्यूयॉर्क मैनहट्टन सिटी में शहीद मौसमा बेनजीर भुट्टो के वहाँ पे मैंने उनसे मुलाकात की, और फिर दोनों के दरमियान मुलाकात का अरेंज भी किया। और मियाँ शाहिद जो उसके थे ओनर, उन्होंने बड़ी उसमें खिदमत अंजाम दी अफगान कबाब हाउस वाले। तो मैंने जब उधर मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई पहली, और वो सारा किया, तो मैंने उनकी गुफ्तगू सुन के, उनका उर्दू सुन के मैंने कहा नवाब साहब आप तो उर्दू नहीं बोलते। उन दिनों उन्होंने बाइकाट किया हुआ था उर्दू का, वो सिर्फ प्रॉब्लम एस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम की वजह से, उन्होंने उर्दू से क्या प्रॉब्लम है, उर्दू को पंजाब की जुबान तो नहीं है जो वो पंजाबी से नफरत खुदा ना करते हैं, तो पंजाबी से नहीं, वो नहीं करते थे। वो कहते मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत। मुझे खुशी हुई, और वो बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू रही। बाद में मुलाकातें हुई, शहीद बीबी से भी उनकी मुलाकात अरेंज की गई। फिर उसके बाद जब वो शहीद हुए मुशर्रफ के दौर में, तो मैं और सेनेटर जंगीर बदर, काजी अब्दुल कदीर खमोश, हम तीनों और अब्दुल कादिर शहीन, हम चारों दो जहां शहीद बीबी के वहाँ पे उनके वारसान थे, उनके बेटों से तज़ियत के लिए उनके घर क्वेटा गए, और मतलब हमने बीबी की तरफ से उन्हें, शहीद बीबी की तरफ से उन्हें पैगामात पहुंचाए। तो मैंने जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो मुझे उसमें गद्दारी वाली कोई चीज नहीं थी, और
मैं ये सोचने पे मजबूर रहा कि ये शख्स जो पाकिस्तान के नारे लगा रहा है, ये जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, ये गद्दार कैसे हो सकता है? तहकीक की, मुताले किया, रिसर्च की, मुझे आज तक उसमें गद्दारी वाली कोई चीज नहीं मिली। फिर प्रोफेसर वारिस मीर साहब पे ये इल्जाम लगाए गए। वारिस मीर साहब क्या थे? सियालकोट के रहने वाले, पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल, और प्रोफेसर पाकिस्तान का मतलब एक इंटेलेक्चुअल एसेट, वो विरसा थे पाकिस्तान का। आपने उनको बांग्लादेश से खिताब भाई एक मुल्क ने दे दिया खिताब इंटेलेक्चुअल समझ के, तो क्या है, आपको नहीं मिलते? आपको अमेरिका से नहीं मिलते जो है वो एजाजात और अनामात और तगमे तोइफ, और आप क्यों वसूल करते हो? अमेरिका क्या पाकिस्तान का सज्जन है या आलम इस्लाम का सज्जन है? जो वारिस मीर, प्रोफेसर वारिस मीर मरहूम नहीं थे? पहले आपने उनके नाम का अंडरपास बनवाया, फिर बाद में हामिद मीर से आपसे तल्लुकात खराब हुए तो फिर वो वापस ले लिया, वो अंडरपास का नाम हटा दिया। अब फिर रख दिया, जब उनका छोटा बेटा मोहसिन नकवी के कैबिनेट में शामिल हो गया तो फिर रख दिया उसका। तो इस तरह तो आपके आज किसी को सर्टिफिकेट देते हैं, कल उस सर्टिफिकेट की दूसरी तरफ लिखा होता है मुहिब्बे वतन। ये क्या ये शोशा उठाया हुआ है आपने? ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने? इस तरह नहीं, आप किसी को गद्दार कह देना, मैं समझता हूं कि मां, बहन, बेटी, बीवी और ईमान के बराबर ये गाली है। यानी मां, बीवी, बेटी से बड़ी और ईमान के बराबर ये गाली है किसी को गद्दार कह देना। हम जिसको चाहते हैं गद्दार कहते हैं। वली खान गद्दार हो गया, वारिस मीर गद्दार हो गया, आसमा जंगीर मरहुमा वो गद्दार हो गई, हामिद मीर गद्दार हो जाता है, अरशद शरीफ गद्दार हो जाता है, सारे इस मुल्क में गद्दार है। आप आधे पाकिस्तान को आपने पहले ही मुस्लिम करार दिया हुआ है, बाकी लोगों को आपने फिरकों एक दूसरे को काफर काफर फलां काफर, काफर काफर फलां काफर, उनको भी काफिर करार दे दो, किसी को काफिर करार दे दिया, किसी को गद्दार करार दे दिया, पाकिस्तान में बचेगा क्या? 2, 4, 10 हजार जेड़े मौलवी बच जाएंगे, इन्हां दा चार पा लिया, जिन्हां दा मरब्बा पा लिया जी, फिर इन्हां जी फिर सब कुछ लभ्या जी। यार को खुदा का खौफ करे, गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटे भाई, ये काफर और मुसलमान होने के सर्टिफिकेट ना हर किसी की अल्लाह ताला से, ये इंसान और उसके खुदा का डायरेक्ट राब्ता है। उसको पता है कि मुझे ये मानने वाला है या ऊपर वाले दिल से लोगों के मुंह रखने के लिए, फेस सेविंग के लिए कह रहा है ये। और उसके बाद जनाब आपने बेशुमार लोगों को सर्टिफिकेट जो है बांटने शुरू की, किसी को जन्नत का हकदार करार दे दिया, किसी को दोज़ख में, जीते जी दोज़ख में फेंक रहे हैं, जहन्नम में फेंक रहे हैं। आप याद रखें, आप किसी शख्स पे गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं, कल को उसकी नस्लें हैं, उसके बच्चे हैं, उसके अकरबा हैं, उसकी बहन भाई हैं, उनका कबीला है, उनकी औलादें हैं, उस तबके पे भी ये दाग लग जाता है ये गद्दार है, उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है। और आपके लोगों के लिए कोई बड़ी, अगर हम कहें कि जो 8-9 निशाने हाजिर मिले हैं, उन्होंने कौन सा तीर चलाया था भाई इतना बड़ा? उन्होंने कौन सा कोई बिजली इजाद की थी? उन्होंने पंखा इजाद किया था? उन्होंने क्या क्या कर लिया था? हाँ, हम मानते हैं उन्होंने वतन के लिए जान दी, कुर्बान की, ओके, तो हम ये मानते हैं, तो आप भी मानो कि बाकी था भी वतन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई गद्दार नहीं है इस मुल्क में। पाकिस्तान में मैं हल्फन की यह कहता हूं, कोई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की धरती पे पैदा हुआ वो गद्दार हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले अब आप देखें, आपने कुछ लोगों की उठा के लगाई हुई हैं बिलबोर्ड पे शहरों के अंदर तस्वीरें, अरशद शरीफ आप वो गद्दार था, साबर शाकर गद्दार, मोहित पीरजादा गद्दार, और बड़े जर्नलिस्ट गद्दार,
सियासतदान गद्दार, पीटीआई के लोग गद्दार, यानी 80% 80% लोग पीटीआई को वोट दे रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में आपके पास सारे रिजल्ट है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ मुझ पे आप सू करें, मुझ पे आप मुकदमा चलाएं। 80% लोगों ने से वोट दिए, और इसका मतलब 80% लोगों ने जिसको वोट दिए वो गद्दार है, तो 80% लोग कौन है? वो गद्दार नहीं है भाई। 80% गद्दारों ने एक गद्दार को चुन लिया, तो फिर तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ 20% लेके कहीं और मुल्क बना लो। ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क किसी के बाप का मिरास नहीं है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है। ये धरती, ये मुल्क, ये वतन, इसके लिए मिलियंस, लाखों में 4 मिलियन से ज्यादा इंसानों ने सिर्फ पंजाब में कतलाम में लोग शहीद हुए। जो पंजाबी इधर से उधर गए, लेंदियों चढ़ दे गए, तो चढ़ दियो लेंदे आए। 4 मिलियन तब पाकिस्तान बना, और किसी को तो पता भी नहीं पाकिस्तान बनाने का। तो जनाब, पाकिस्तान में हर वो बंदा जो पाकिस्तान में रहता है, सांस लेता है, पाकिस्तान की जमीन की रोटी खाता है, पाकिस्तान की जमीन पे सांस लेता है, उसका पानी पीता है, वो गद्दार नहीं है। और ना ही किसी को, ना किसी मौलवी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत है, ना कोई मानेगा, और ना किसी एस्टेब्लिशमेंट को, उसके परवरदे को, और ना किसी नून मीम काफ है जीम एन सीन, ना किसी उस जमात को ये इख्तियार हासिल के किसी को गद्दार कहे। इसलिए कि कल के हिजरत करके आने वाले आज हमें गद्दार कहेंगे अपने? हम इस धरती के लोग हैं, हम इस पंजाब के हजारों सालों से, लाखों सालों से मेरे आबा ने इस पंजाब की धरती पे जन्म लिया। मैं ओरिजिनल पंजाबी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, और आज हमें तुम लोग गद्दार कहोगे? हम आपका जो ना कलेजा सीने से निकाल के भी नोच लेंगे आपको। गद्दार कहते हो? इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी इस धरती के लिए? आप बिलबोर्डों पे तस्वीरें लगाते हो, तमाशा बनाते हो, अब पूरी दुनिया हंस रही है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, चादर, चार दुआरी तो आप दे नहीं सकते, आप गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हो। वाह, कुर्बान जावा तुहाडियां पॉलिसियां थे। खुश के नहा लें, मुल्क को चलने दे, और ये अल्लामा इकबाल के ख्वाब पूरे होने दे, कैद आज़म के पाकिस्तान की तकमील करें। इस चैनल, यूट्यूब चैनल मतलूब राइट्स ऑफिशियल को देखते रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और सलामती पाकिस्तान के लिए दुआ मांगते हैं। खुदारा गद्दार कोई नहीं है, या मुझे बता दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।